Welcome to chapter 15, Introduction to Graphs. In this chapter, we are going to learn how to draw graphs. An exact same chapter and same type of drawing of graphs will come in 9th standard also in chapter 4. So chapter 3 and 4 of 9th standard are exactly related to chapter 15. तो ये अच्छे से करना, 2-3 महीने बाद 9th का ग्राफ वाला चैप्टर आना चाहिए. Introduction to graphs. What is a graph? A graph is a piece of paper which has a grid of 1 centimeter each. For example, I have this graph paper here which I am going to copy and paste it for you. This is a graph paper. In the graph paper, there is an x-axis and there is a y-axis. In some graphs, we draw the x-axis here. X-axis is an infinite line. So there are arrows here which indicate कि ये line endless है. At the end of the page, you have to write x axis. Then there is another line which we call as y axis. Y axis is also infinite, so there has to be arrows at the bottom and at the top, and the name y axis we always write at the top on the graph paper. ग्राफ पेपर पे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पे छोटे अक्षर में फिट करना है. Is it compulsory that x and y axis are arranged like this all the time? No, it's not compulsory. For example, this is another graph paper. I can draw my y-axis anywhere. I can draw it at the center of the page also. And I can draw the x-axis in the center of the page. Approximate center. Exact center भी ढूंढ सकते हो. But always remember to draw the axis on one particular dark line of the graph paper. ग्राफ पेपर के ऊपर बहुत सारी लाइंस होती है और ये बहुत सारी लाइंस में से बीच में कुछ ड्रॉ नहीं करने का. ऑलवेज ड्रॉ ऑन वन ऑफ द प्री प्रिंटेड लाइंस ऑफ द ग्राफ पेपर. एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस इज अ नंबर लाइन and this is the center of the number line which is 0. और अगर ये 0 है तो ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5 and so on and so forth. This is the positive side of the x-axis. Only positive natural numbers are there. जितनी जगह उतने numbers. And on the other side, there are negative numbers. 0 जो बीच में है उसके बाजू में -1, -2. चैप्टर नंबर 1 में शो ऑन नंबर लाइन था, ये एक नंबर लाइन ही है. -7 and -8. Y-axis also has similar thing, but ये स्टैंडिंग नंबर लाइन है जहां पे पॉजिटिव नंबर ऊपर है. तो 0 के इमीडिएटली बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो फोर्थ. ग्राफ पेपर पे जितनी जगह है उतने. यो 4 खा गया. तुम लिख सकते हो.
So the top line is always the positive side of y-axis, and naturally and obviously 0 के immediately बाद -1, -2, -3, -4, -5, -6 and so on. This is how a graph paper looks. नेगेटिव साइड. अब तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? This is the zero where the two lines intersect. It is called origin. Origin मतलब जहां दो एक्सिस कट करते हैं और उसके बाद एक्स एक्सिस का राइट हैंड साइड 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव नंबर्स है. Every number is written below this small line, and this small line is 1 centimeter away from each other on the graph paper. Similarly, the top side of y-axis is also the positive side. This is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो ये दो ग्राफ पेपर में फर्क सिर्फ इतना है कि एक्सिस का पोजीशन अलग है. क्यों अलग है? आई विल टेल यू. ग्राफ पेपर के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और ये पॉइंट्स का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिसको ऐसे लिखा जाता है ब्रैकेट x, y. ब्रैकेट x, y मतलब ब्रैकेट 2, 3, ब्रैकेट 5, 1, ब्रैकेट 6, 7. क्या है ये 2, 3, 5, 1, 6, 7? टू 3 मतलब x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 3 एक दूसरे से कहाँ मिलेंगे? तो y एक्सिस का 3 और x एक्सिस का 2 meet at this position. This is point A जिसका एड्रेस है 2, 3. 5, 1 तो पहला नंबर हमेशा x एक्सिस पे 5, 1 मतलब y एक्सिस पे 1, 1 and 5 meets here. This is point B जिसका एड्रेस है 5, 1. क्या 5, 1 और 1, 5 सेम होता है? नहीं. 1, 5 मतलब 1 पहले है x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 5. And where do they meet? They meet at this point. This point, हर एक पॉइंट का एक अल्फाबेटिकल नाम होता है C और एड्रेस है 1, 5. तो 5, 1 और 1, 5 सेम नहीं होता. 2, 3, 3, 2 सेम नहीं होता. 6, 7 का है 6, 7 D 6, डूइंग दिस लाइन्स इज नॉट कंपल्सरी, बट तुम्हारे स्कूल में अगर टीचर बोले तो कर देने का. लाइन से मिस्टेक होने के चांसेस 0 हो जाते. मिस्टेक्स होगी ही नहीं. 6, 7. तो फिर ये दूसरा सेटअप क्यों किया है? द रीजन इज एवरी ग्राफ हैज 4 क्वाड्रेंट्स. ये है पॉजिटिव साइड ऑफ x, ये है पॉजिटिव साइड ऑफ y. जब दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं x और y, इट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट 1, QUA.
DRANT. बट x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव, मतलब माइनस प्लस, इट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट 2. कभी कभी रोमन नंबर में भी होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, x, और ये जोन क्या है, तो x वाली साइड नेगेटिव है, y वाली साइड भी नेगेटिव है, इट्स माइनस कॉमा माइनस, क्वाड्रेंट 3, रोमन नंबर 3. और यहां पे x पॉजिटिव, y नेगेटिव, प्लस माइनस, क्वाड्रेंट 4, रोमन नंबर 4. There is going to be a small quiz on this part, ऑनलाइन क्विज, जिसमें तुम्हें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे. So your first job is to copy this entire graph paper with all information, this second one, and keep it ready. क्योंकि इसमें से कम 50 क्वेश्चन मैं बना सकता हूं. Why are we making this kind of graph? Because this is only quadrant 1. अगर तुम्हारे डेटा में, मतलब क्वेश्चन के अंदर, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव ही है, तो ये सारी जगह वेस्ट है, because there are no negative numbers in your question. And if this is not supposed to be used, then why don't we expand the graph and make a big one? Therefore, in some of the graphs where both the numbers are positive, you will make this kind of graph. और कभी कभी ऐसा. Let's move ahead and start solving exercise 15.1. You have to write every question in your notebook by looking at the graph of textbook. तो अपने सामने टेक्स्ट बुक भी रखो, एक स्केल और नोटबुक जिसमें तुम क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखोगे. Sum number 1. But before reading the sum, let me show you how to read a graph. ग्राफ रीड करना सीखो. Where is the x-axis? This is the x-axis, which is a line. Where is y-axis? This is the y-axis. Where is 0, 0, मतलब origin? This is 0, 0. 0 के बाद 9, 10, 11, 12 आ सकता है क्योंकि ये टाइम है. एंड ग्राफ में इट्स नॉट कंपल्सरी कि 0 के बाद 1 ही लेना है. तुम 5, 10, 15, 20, 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 12, 15, 18 कोई भी टेबल बना सकते हो. और यहाँ पे टाइम है तो 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 noon एंड एक्सेट्रा. एंड टाइम इज रिटन हियर टू इन्फॉर्म अस कि एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. और वाई एक्सिस के ऊपर क्या दिया हुआ है? वाई एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर है 34, 35, 36, 37 डिग्री सेंटीग्रेड. इट्स रिटन हियर. And the main thing is our graph, the line जिसको हमें पढ़ना है, इंफॉर्मेशन को समझना है, डिकोड करना है. तो ये लाइन का मतलब क्या है? तो मतलब कुछ ऐसा है कि 9 बजे ग्राफ मतलब ये लाइन, मेन लाइन, 9 बजे लाइन तक ट्रैवल करो और वहां से वाई एक्सिस की तरफ टर्न लो तो तुम्हें टेम्परेचर पता चलता है कि 9 बजे टेम्परेचर कितना था. 35 और 36 के बीच में 35.5. 9 AM 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड वॉज द टेम्परेचर. 10 बजे कितना था? तो 10 से ग्राफ तक ट्रैवल करके टर्न लो, टेम्परेचर बिकेम 36.
36.0 डिग्री सेंटीग्रेड, 11 बजे, 12 बजे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट वी कैन ऑल्सो रीड द ग्राफ उल्टा. मतलब 39 डिग्री टेम्परेचर कितने बजे था. सो 39 से शुरू करो, गो अप टू द ग्राफ, grow up to the line, and then take a downward turn and check the x-axis. 39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितने बजे था. 11 बजे. फिर कभी पूछेंगे 37.5 डिग्री टेम्परेचर कितने बजे था. तो 37.5 मतलब 37 और 38 के बीच में ट्रैवल अप टू द लाइन. सी यू डोंट हैव टू सर्च फॉर द डॉट्स. डॉट्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ये जो लाइन है वहां तक जाके टर्न लेना है. एंड व्हेन यू टेक अ टर्न यू रीच अ पर्टिकुलर टाइम. કેટલા વાગ્યા છે? 10 અને 11 ની વચ્ચે 10:30 વાગે. तो बहुत कुछ समझ में आता है बाय लुकिंग एट अ सिंपल ग्राफ कि कौन सा टेम्परेचर कितने बजे था और कौन से टाइम पे क्या टेम्परेचर था. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड. अपार्ट फ्रॉम दिस you also understand that the temperature was increasing. Then the temperature increased further. Then the temperature started to reduce. Then the temperature became steady and then it increased slightly. So this zone temperature is increasing. This zone temperature is decreasing. फ्लैट लाइन का मतलब है नो चेंज. तो नंबर्स को मान लो गोली. सिर्फ ग्राफ देख के हम ये भी बता सकते कि टेम्परेचर વધ્યું, ઘટ્યું, ફ્લેટ થઈ ગયું અને પછી પાછું સ્લાઇટ વધ્યું છે. इसका एक यूज है इंटेलिजेंट यूज. कैन यू गेस, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कैन यू गेस कि पेशेंट को बुखार है, उसको कितने बजे दवाई दी थी. लॉजिक सेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस यू टेक मेडिसिन एंड व्हेन यू टेक मेडिसिन टेम्परेचर स्टार्ट्स टू गो डाउन. मेरे हिसाब से 11 बजे पेशेंट ने दवाई ली थी क्योंकि उसके बाद से टेम्परेचर कम होने लगा. If I ask another question, at what time did the medicine stop working? दवाई की असर होती है ना, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा. दवाई की असर कब बंद हो गई या बंद होने लगी. तो यहां तक टेम्परेचर ओके था, डिक्रीज होके स्टेडी था, बट यहां से वापस बढ़ने लगा टेम्परेचर. देयरफॉर 2 बजे तक दवाई की असर रही. This is very important in day-to-day life because from this we know कि दवाई की असर कितने घंटे रहती है. तो ऐसे रिसर्च वाले लोग ये करते रहते हैं पूरा दिन. सो दे नो कि कौन सी दवाई की असर कितने घंटे तक रहती है. Anyways, enough of discussion. Let's look at real textbook questions. What are they trying to ask and how are we supposed to answer them? Okay, I'm restarting the presentation. You don't have to draw the graph. You have to write the question answers only in the first exercise. The following graph shows temperature of a patient every hour. First question A. What was patient's temperature at 1 p.m.? 1 pm टेम्परेचर कितना था. तो 1 pm को यू स्टार्ट ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द ग्राफ. मैं जब भी ग्राफ बोलूं मतलब आई मीन द लाइन. एंड देन टेक अ टर्न.
you will get your answer 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड. एक मार्क मिल गया. क्वेश्चन बी, व्हेन वॉज पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड. 38.5 टेम्परेचर कितने बजे था? तो 38.5, 39 और 38 के बीच में होता है. गो अप टू द ग्राफ एंड गो डाउन. अब इसको ध्यान से देखो, ये 10 और 11 के बीच में नहीं है. सो 10 और 11 के बीच में 10:30, और ये अप्रोक्सीमेट 10:30 और 11 के बीच में है. 10:45 विल बी द आंसर. घड़ियाळ जोता आवड़े ने. आंसर 10:45 AM को टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड था. क्वेश्चन सी, द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times during the given period. What were these 2 times? 2 टाइम पे पेशेंट का टेम्परेचर सेम था, तो वो कितने बजे था? अब डॉट्स देखने हैं. ये 2 डॉट सेम टेम्परेचर पे, 36.5 पे ये डॉट है और ये डॉट भी 36.5 पे. Therefore you will write 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड was at 2 times. नीचे जाके देखो, 1 बजे और 2 बजे, 1 PM 2 PM. Question D, what was the temperature at 1:30? How did you arrive at your answer? 1:30 बजे टेम्परेचर कितना था? तो 1 और 2 के बीच में 1:30 बजे, 1 और 2 के बीच में से ऊपर जाओ up to the line and then take a turn 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 1:30 PM 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड. हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर? ना ये ऐसे राइटिंग है, तो मैं मतलब ये फुलिश है, ये मैथ्स नहीं है. यू हैव टू राइट डाउन 2-3 sentences. स्टार्ट from 1:30 PM on x-axis and go up to the ग्राफ लाइन. तो ग्राफ की लाइन तक ऊपर ट्रैवल करो. देन टर्न लेफ्ट and travel to y-axis. You will reach a point. तुम एक ऐसे पॉइंट पे रीच करोगे whose temperature is 36.5 degree centigrade. Whose temperature is, pardon my handwriting, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जो किया है वो लिखना है सेंटेंस फॉर्म में. एंड लास्ट क्वेश्चन ई, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड. पेशेंट का टेम्परेचर अपवर्ड ट्रेंड मतलब बढ़ रहा था, ऊपर जा रहा था. वो कौन से टाइम पीरियड के बीच में था? आई एम गोइंग टू हाईलाइट टेम्परेचर इंक्रीजिंग जोन. This is first increase, this is second increase, this is third increase. So 9 to 10 AM temperature increased, 10 to 11 also temperature increased, and 2 PM to 3 PM also temperature increased. Similarly, they could have asked कि कब कब temperature घटा, 1 और 2. टेम्परेचर घटा फ्रॉम 11 to 12 एंड 12 to 1. और कब टेम्परेचर स्टेडी था, कोई चेंज नहीं था. नो चेंज इन टेम्परेचर इज अ फ्लैट लाइन फ्रॉम 1 to 2. बढ़ा, घटा और नो चेंज.
सेकेंड क्वेश्चन, एक कंपनी है जो 5-6 साल से बिजनेस कर रही है। 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006 की ये लाइंस है, और हर साल कितना सेल्स किया इन रुपीस करोड़, मतलब ये चार क्या है, दिस इज 4 करोड़ रुपीस, 6 करोड़ रुपीस, 8 करोड़ रुपीस, 10 करोड़, 12 करोड़, 500 करोड़, जो भी है ग्राफ के अंदर सेल्स लिखा है, आटला रुपयानो माल वेच्यो कंपनी। हाउ टू रीड द ग्राफ, इट्स वेरी वेरी सिंपल। 2002 से ऊपर ट्रैवल करो एंड टेक अ टर्न, तुमको पता चल जाएगा 2002 में 4 करोड़ का सेल था। 2004 का सेल जानना है तो 2004 से ऊपर ट्रैवल करके लेफ्ट टर्न मारो, 6 करोड़। 2005 10 करोड़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Let's look at the question answers now. Question number 1. What were the sales in 2002 and 2006? 2002 का सेल्स 4 करोड़, 2006 का सेल 8 करोड़। लिख दो आंसर, 4 करोड़ एंड 8 करोड़। Question B. What were the sales in 2003 and 2005? Same question, 2003 में 7 करोड़, 6 और 8 के बीच में, और 2005 में 10 करोड़, 7 and 10. But if you write 4, 8, 7, 10 in your homework, be prepared that I will reject your homework. कैसे लिखना है? Question number 2. सम नंबर 2 का पहला क्वेश्चन का पहला रो नंबर 2002 में सेल्स कितना था? 4 करोड़ रुपीस। बी, अरे बी कहाँ से आएगा, अभी रोमन नंबर 2 बाकी है भाई। रोमन नंबर 2, 2006 में सेल्स कितना था? 8 करोड़ रुपीस। इफ आई डोंट सी दिस, बी प्रिपेयर्ड दैट आई एम गोइंग टू रिजेक्ट योर वर्क। यू आर नॉट किड्स एनी मोर। अच्छे से लिखना आना ही चाहिए। क्वेश्चन सी, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। सी, 2002 में कितना सेल्स था? एज आई सेड, लाइन ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, नंबर्स लिखना जरूरी है। 4 करोड़ रुपीस। 2006 में सेल्स कितना था? 8 करोड़ रुपीस। पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस? 8 माइनस 4 करोड़ रुपीस का डिफरेंस। एंड द लास्ट क्वेश्चन डी, इन विच ईयर was there the greatest difference between the sales as compared to previous year? कौन से साल में सबसे ज्यादा सेल बढ़ा कंपेयर टू प्रीवियस ईयर? तुम्हें जंप मेजर करना, कितने करोड़ का जंप है। ये 2 डॉट के बीच में 1, 2, 3, मतलब 4 से 5, 6 एंड 7, 3 करोड़ का जंप है। ये तो घट गया सेल्स, 7 था 6 हो गया, तो डिफरेंस 1 है, एक नीचे। यहां से यहां तक 1, 2, 3,
4 crores और ये है 1-2 crores. So biggest jump in the sales is 4 crore rupees from 2004 to 2005. ये डायरेक्ट लिख देना है. 2004 6 crores, 2005 10 crores. Therefore, greatest difference is 4 crores. Greatest difference is 4 crore. Third, you see on x-axis there is a start point. 1 week, 2 week, 3 week. વીક્સ लिखा અને વીકમાં કેટલા દિવસ હોય? 7 દિવસ. તો આ જો यहाँ से स्टार्ट हुआ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर से संडे. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर से संडे. तो 7-7 का गैप है. वीक्स है और ये है हाइट इन सेंटीमीटर. प्लांट की हाइट बढ़ रही है 2, 4, 6, 8 सेंटीमीटर. दैट्स द डेटा. Let's read the question from this slide. How high was plant A after 2 and 3 weeks? Plant A 2 weeks और 3 weeks के बाद हाइट कितनी थी? टू वीक्स. प्लांट ए डॉटेड लाइन है तो डॉटेड लाइन तक जाओ और वहां से टर्न मारो. आंसर मिल गया 7 सेंटीमीटर. और 3 वीक्स प्लांट ए की लाइन तक जाओ और टर्न मारो 9 सेंटीमीटर. Answer is 7 and 9 centimeter, which you have to write in full detail. Next question, how high was plant B after 2 and 3 weeks? 2 week पे ब्लैक लाइन भी यहीं पे या यहीं से गुजर रही है तो उसकी हाइट भी 7. और 3 वीक्स पे प्लांट बी ब्लैक लाइन थोड़ा सा ऊपर है. द हाइट ऑफ प्लांट बी इज 10 सेंटीमीटर. तो 7 and 10. हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक? तीसरे हफ्ते दरमियान कितना ग्रोथ हुआ? तो ये है पहला वीक, ये दूसरा वीक और ये तीसरा वीक. और थर्ड वीक का ग्रोथ फाइंड करना है, કેટલું વધ્યું. तो थर्ड वीक माइनस सेकेंड वीक करने का. प्लांट ए थर्ड वीक का ग्रोथ. सो क्वेश्चन सी, प्लांट ए थर्ड वीक माइनस सेकेंड वीक. तीसरे हफ्ते के एंड में कौन सा था मैं भूल गया. प्लांट ए थर्ड वीक के एंड में प्लांट ए की हाइट थी 9 और सेकेंड वीक के एंड में प्लांट ए की हाइट थी 7. 9 minus 7. How much did plant A grow in the third week? 2 centimeter. D. Plant B. How much did plant B grow from the end of second week to the end of third week? End of second week. ये है first week, second week. Then this is the end of second week. This is the end of third week. ये डिफरेंस फाइंड करना है प्लांट बी में. सेकेंड वीक पे बी का हाइट
7, थर्ड वीक पे बी का हाइट 10, थर्ड वीक माइनस सेकेंड वीक 10 माइनस 7, 3 सेंटीमीटर ग्रो किया. क्वेश्चन ई, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो द मोस्ट. प्लांट ए ने सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से हफ्ते में दिखाया. तो प्लांट ए के ग्राफ को ट्रैक करो और देखो कि वो कितना बड़ा है. मीन्स आई एम ट्रैकिंग द डॉटेड लाइन एंड आई एम काउंटिंग अप 1 2 सेंटीमीटर बड़ा. यहां से 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर बड़ा. यहां से 1 2, ये ऊपर कहां जा रहे हो, 1 2 सेंटीमीटर बड़ा. सो प्लांट ए मैक्सिमम ग्रोथ वॉज इन द सेकेंड वीक. और ये पूरा मेथड सिर्फ तुम्हें आना चाहिए, दिखाना नहीं है. यू जस्ट हैव टू गो हियर एंड राइट डाउन ए बी सी डी ई. ड्यूरिंग विच वीक, सेकेंड वीक. प्लांट ग्रो द मोस्ट, 5 सेंटीमीटर मैक्सिमम ग्रोथ. क्वेश्चन एफ, ड्यूरिंग विच वीक प्लांट बी ग्रो द लीस्ट. प्लांट बी का ग्रोथ ट्रैक करो और सबसे कम ग्रोथ कब था. आई एम क्लीनिंग माई ग्राफ. योर फोकस शुड बी ऑन प्लांट बी, मतलब ब्लैक लाइन. ये रही ब्लैक लाइन. 0 से फर्स्ट वीक के एंड तक सिर्फ 1 सेंटीमीटर उगा था. फर्स्ट वीक से 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर उग गया. और यहां से 1 2 3 सेंटीमीटर. सो सबसे कम ग्रोथ वॉज रजिस्टर्ड इन द फर्स्ट वीक. दैट्स योर आंसर, फर्स्ट वीक. एंड व्हाट वॉज द ग्रोथ, वो 0 से 1 सेंटीमीटर पहुंचा था, मिनिमम ग्रोथ. Pardon my handwriting. And G, were the two plants of same height during any week? Specify. दोनों प्लांट की सेम हाइट कब थी. ये रही, ये डॉट देखो, डॉटेड लाइन एंड ब्लैक लाइन बोथ आर मीटिंग हियर. सो दिस इज वेयर द हाइट ऑफ द टू प्लांट्स वॉज सेम एंड दैट सेम हाइट वॉज 7 सेंटीमीटर. और ये कब है, एंड ऑफ सेकेंड वीक. पहलू अठवाडिયું પત્યું, બીજું અઠવાડિયું પત્યું અને 7 સેન્ટીમીટર હાઇટ. तो जी का आंसर है एंड ऑफ सेकेंड वीक, हाइट 7 सेंटीमीटर फॉर बोथ प्लांट्स. एंड ऑफ सेकेंड वीक, हाइट 7 सेंटीमीटर फॉर बोथ प्लांट्स. વેધર ડિપાર્ટમેન્ટ ટેમ્પરેચર ફોરકાસ્ટ કરતા. આજે આટલું ટેમ્પરેચર હશે, કાલે આટલું હશે, સન્ડે આટલું હશે. तो ये 7 दिन का वेदर फोरकास्ट है और 2 ग्राफ्स है. द डॉटेड लाइन इज फोरकास्ट, એટલે આ ગેસ કર્યું હતું. એન્ડ ધ एक्चुअल ઇઝ ધ બ્લેક લાઇન, કે સાચે શું હતું અને ફોરકાસ્ટ શું હતું. એટલે પ્રેડિક્શન અને एक्चुअल જે 100% સેમ નથી, કારણ કે બે અલગ લાઈન દેખાય છે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન A, on which days was forecast same as actual. forecast same as actual એટલે જે ધાર્યું તું એ જ નીકળું. ये देखो दोनों लाइन जहाँ मिलती है, that's where forecast
and actual are same. Forecast, actual, same. Forecast, actual, same. Tuesday, Friday, Sunday. Tuesday, Friday, Sunday. જે ફોરકાસ્ટ કર્યું હતું એ સાચું પડ્યું. ટ્યુઝડે, ફ્રાઈડે, સન્ડે. What was maximum forecast temperature during the week? Maximum forecast. Forecast એટલે dotted line અને maximum dotted line क्या पहुंचे छे? RA. और ये कितना टेम्परेचर है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड. मैक्सिमम फोरकास्ट ऑफ द वीक 35 डिग्री सेंटीग्रेड. What was the minimum actual during the week? સૌથી ઓછું actual એટલે સૌથી ઓછું black line आ रही, लोएस्ट पॉइंट. ये दोनों पॉइंट सेम है ब्लैक लाइन के. थर्सडे एंड फ्राइडे 15 डिग्री. टेम्परेचर पूछू છે કે દિવસ વોટ વોઝ મિનિમમ ટેમ્પરેચર પૂછ્યું છે 15 ડિગ્રી. દિવસ પૂછ્યા હોત તો થર્સડે ફ્રાઈડે. ડી. On which day did actual temperature differ the most from forecast? કયા દિવસે ફોરકાસ્ટ અને એક્ચ્યુઅલનો ડિફરન્સ મેક્સિમમ હતો? બહુ મોટો ગેપ હતો. ये देखो गैप, डॉटेड और ब्लैक लाइन में गैप 1 बॉक्स, गैप 2 बॉक्स, गैप 3 बॉक्स, नो गैप 2 बॉक्स, नो गैप. तो मैक्सिमम गैप અહીંયા છે. પણ આ ગેપ કેટલો છે? ફોર ધેટ યુ હેવ ટુ ટ્રાવેલ એન્ડ ચેક ધ ટેમ્પરેચર. 15 डिग्री. ये क्या है? 20 और 25 के बीच में क्या टेम्परेचर आता है? तो 15 डिग्री तो बराबर, પણ 20 અને 25 ની વચ્ચે શું આવે? 20 + 25/2 करने का 22.5. तो ब्लैक लाइन क्या છે? આ રહી એ બહુ બધું થઈ ગયું છે. तो लास्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम गैप कितना और कौन से दिन था? $15 डिग्री और डॉटेड लाइन पे 22.5, मतलब फोरकास्ट था 22.5, एक्चुअल निकला 15 डिग्री. तो गैप, मैक्सिमम गैप 22.5 - 15, 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड का गैप था. दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन डी. वो कौन से दिन पे था? थर्सडे. On which day? Thursday. Actual differ the most from forecast. Forecast 22.5, actual 15, difference 7.5. બધું જ લખી નાખવાનું. ટીચર એક પણ માર્ક કાપશે જ નહીં. તમને કહી જ નહીં શકે કે આ મિસિંગ છે ને તે નથી લખ્યું. ડોન્ટ ગીવ ધેમ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ કટ માર્ક્સ. ગીવ ધેમ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ગીવ યુ શાબાશ. બહુ જ સરસ લખ્યું છે, બધી डिटेल्स લખી છે. होमवर्क में भी मैं ये चेक करने वाला हूँ कि सब कुछ ग्रामेटिकली फुल सेंटेंस में अच्छे से लिखा है कि नहीं. होमवर्क में ये
पूरे पूरे क्वेश्चंस नहीं लिखोगे तो चलेगा. आई डोंट वांट दीज सेंटेंसेस. आई वांट योर सेंटेंसेस जिसमें अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा. यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स. ग्राफ ड्रॉ करना हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, तो ये क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा. सिक्स्थ, टाइम 8 વાગે 9 વાગે 10 વાગે 11 વાગે 12 વાગે. ડિસ્ટન્સ ઇન કિલોમીટર. 8 વાગે સ્ટાર્ટ કર્યું 0 કિલોમીટર. 9 વાગે 10 કિલોમીટર દૂર જતો રહ્યો. 10 વાગે 16 કિલોમીટર. 11 વાગે કંઈક અહીંયા 19 કિલોમીટર. સો અધવચ્ચે ટાઈમ આપેલો છે. ધીસ ઇઝ ધ જર્ની ઓફ અ સાયકલિસ્ટ. કુરિયર વાળો જે સાયકલ ચલાવીને ડિલિવરી કરવા જાય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 1, વોટ ઇઝ ધ स्केल टेकन फॉर टाइम एक्सिस? वेरी इंपॉर्टेंट. और तुमको अब तक मैंने स्केल बताया नहीं. स्केल એટલે એ બી પાછું टाइम एक्सिस નો. तो आंसर कैसे लिखोगे? स्केल फॉर टाइम एक्सिस. 1 centimeter is equal to dash. बस. Look at the graph and think कि ये जो एक गैप है उसकी वैल्यू कितनी है. 1 गैप 9 થી 10 વાગ્યા એટલે 1 કલાક ગયો. પણ 1 કલાકની અંદર 4 બોક્સ છે. 1 2 3 4. તો 1 કલાકની અંદર 4 બોક્સ. 1 hour is represented by 4 boxes. Can I say 60 minutes is represented by 4 boxes? It means one and the same thing, right? तो एक बॉक्स કેટલું रिप्रेजेंट करे छे ये कैलकुलेशन लिख के फर्स्ट का आंसर देना. आंसर आएगा 15 मिनट्स. 60 minutes for 4 boxes. How many for 1 box? Unique question. B. How much time did the person take for the travel? ટ્રાવેલ કરવા માણસે કેટલો ટાઈમ લીધો એટલે આખી જર્નીનો ટાઈમ પૂછ્યો. કેટલો ટાઈમ એટલે કેટલા કલાક. 8 વાગે ચાલુ કર્યું તું, જર્ની અહીંયા પતી જાય છે. ટાઈમ ચેક કરો કેટલા વાગ્યા. 11:30 વાગ્યા. 11 और 12 के बीच में. तो 8 થી 11:30 તો લખવાનું B. How much time did person take for travel? Time taken for travel is 8 AM to 11:30 AM. અને 8 થી 11:30 કેટલા કલાક થાય એ તો ખબર જ છે. બેબીસ તો છો નહીં, નાનકડા કે ટાઈમ જોતા ન આવડે. 3.5 hours. 3.5 કલાક લાગ્યા. Question C. How far is the place of the merchant from the town? જેને ડિલિવરી કરવા જાય છે એની જગ્યા કેટલા કિલોમીટર દૂર છે? ઇટ્સ વેરી ઇઝી. એની જર્ની પતી એટલે પહોંચી ગયો અહીંયા. 22 કિલોમીટર દૂર છે. Because when he started from 0. So 22 kilometer is the straightforward answer for C. D. Did the person stop on his way? Explain. માણસે બ્રેક લીધો તો કે નહીં? લીધો તો. આ રહ્યો.
10 વાગે ચેક કર્યું, ફોન કર્યો બોસે, ક્યાં પહોંચ્યો? સર 16 કિલોમીટર દૂર છું. 10:30 વાગે પાછો ફોન કર્યો, ક્યાં પહોંચ્યો? સર 16 કિલોમીટર દૂર છું. એનો મતલબ he did not travel during this point, he stopped. 10 to 10:30 is the answer. 30 મિનિટનો બ્રેક લીધો હતો. Did the person stop? Yes. Between what time? 10 to 10:30. For how much time? 30 minutes. At what distance? 16 કિલોમીટર. આમાં એક્સપ્લેનેશન આવી જશે કે 10 થી 10:30ની વચ્ચે 30 મિનિટ માટે 16 કિલોમીટર ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કર્યા પછી સાહેબે બ્રેક લીધો હતો. During which period did he ride fastest? સૌથી ફાસ્ટ સાયકલ કયા ટાઈમ પીરિયડમાં ચલાવી? 8 થી 9, 9 થી 10, 10 થી 10:30, 11 થી 12. कुछ भी आंसर हो सकता है, तुम्हें सोच के आंसर देना है. देखो, ये थोड़ा लंबा हो सकता है. ये जर्नी 8 થી 9ની જર્ની એ, 9 થી 10 બી, આ સી અને આ ડી. એ જર્નીમાં ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ કેટલો ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કર્યો? અહીંથી જમ્પ લેવાનો. 1, 2, 3, 4, 5 બોક્સ એટલે 10 કિલોમીટર. કેટલા ટાઈમમાં? 1, 2, 3, 1 કલાક. 8 થી 9, 9 થી 10 તો 1 કલાક છે. 1 hour. એની સ્પીડ 10 કિલોમીટર પર આવરની હતી. બી જર્નીમાં આ લીટી 1, 2, 3 એટલે 10 થી 16, 6 કિલોમીટર. ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ 6 કિલોમીટર ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ્ડ ઇન બી. ટાઈમ કેટલો લાગ્યો? 9 થી 10, 1 કલાક. 6 કિલોમીટર પર આવર. સીમાં તો એ ઊભો હતો અને ડીમાં 1, 2, 3, 16 થી 22, 6 કિલોમીટર. ધ્યાનથી જોજો ટાઈમ કેટલો લાગ્યો. 10:30 થી 11:30. This is also 1 hour. 6 કિલોમીટર પર આવર. આટલું લખ્યા પછી our answer is A. એટલે સવારે 8 વાગ્યાથી 9 વાગ્યા વચ્ચે સૌથી ફાસ્ટ ચલાવી એણે સાયકલ. During which period did he ride fastest? He rode the fastest between 8 a.m. and 9 a.m. So from the graph you can actually find out the speed of the cyclist, distance upon time. And the last question of this lecture, can there be time temperature graph as follows? टाइम वर्सेस टेम्परेचर नो आवो ग्राफ हो सके कि नहीं? तो ये बहुत ही डीप अंडरस्टेंडिंग वाला क्वेश्चन है. टाइम हमेशा आगળ જાય. ટાઈમને પાછળ તમે નથી ખેંચી શકતા. આગળ જવું એટલે આમ ટ્રાવેલ કરવાનું. ટાઈમ વધે છે. 1 કલાક, 2 કલાક, 3 કલાક, 4 કલાક. અને આ બાજુ ટેમ્પરેચર વધે છે. 1 ડિગ્રી, 2 ડિગ્રી, 3 ડિગ્રી, 4 ડિગ્રી. સ્ટ્રેટ અપ લાઈન 1માં લખવાનું, ટાઈમ ઇન્ક્રીઝિંગ, ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝિંગ. યસ, this is possible. કેવી રીતે?
અરે ભાઈ ગેસ પર પાણી મૂકી અને ગેસ ચાલુ કરી દો તો ટાઈમ ચાલુ થઈ જાય અને ટેમ્પરેચર વધવા માટે ગેસ ઇઝ ઓન टेम्परेचर बढ़िया करे। सेकेंड ग्राफ देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। एरो आम जाए એટલે ટાઈમ ઉપર એરો આમ જાય છે, ટાઈમ વધે છે, પણ ટેમ્પરેચર ઉપરથી નીચે આવે છે, ટેમ્પરેચર ઘટે છે। લખવાનું ટાઈમ increasing, temperature decreasing. Yes, it is possible. Utensil, hot utensil is cooling down. લોઢાની શું યાર ઢોસાનો તાવો હોય, ઢોસા ઉતારી લીધા પછી મમ્મીએ ગેસ બંધ કરી દીધો તો હોટ યુટેન્સિલ ઇઝ કુલિંગ ડાઉન, તો એનું ટેમ્પરેચર ધીમે ધીમે નીચે આવે છે, તેવું પોસિબલ છે। एक एग्जाम्पल आप्यो आपणे। थर्ड ग्राफ, एक पर्टिक्युलर टाइम वखते टेम्परेचर आटलू हतुं, ए सेम टाइम में आ लाइन ऊंची जाए छे, टाइम एज छे 10 वाग्या सवारना, तो सवारना 10 वागे टेम्परेचर चेक कर्યું तो બધા થોડી આવે, આ બ્લેક લાઇન ઊભી ન હોઈ શકે, નોટ પોસિબલ। અને રીઝનમાં લખવાનું સેમ ટાઈમ મલ્ટિપલ ટેમ્પરેચર નોટ પોસિબલ। એક ટાઈમનું એક ટેમ્પરેચર હોય, બહુ બધા અલગ અલગ ટેમ્પરેચર કેવી રીતે થાય? મલ્ટિપલ ટેમ્પરેચર ઇમ્પોસિબલ। दस वागे 11 वागे 12 वागे 1 वागे 10 वागे चेक कर्યું टेम्परेचर आटलू ज, 11 वागे चेक कर्યું टेम्परेचर एटलू ज छे, 12 वागे चेक कर्યું टेम्परेचर एटलू ज छे, 1 वागे चेक कर्યું टेम्परेचर एटलू ज छे। इज दिस पॉसिबल? यस। टाइम ઇન્ક્રીઝિંગ એ તો હંમેશા વધ્યા જ કરવાનું છે, બટ ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ એટલે નોટ ઇન્ક્રીઝિંગ નોટ ડિક્રીઝિંગ, પોસિબલ। ઇટ્સ લાઈક અ કપ ઇન કપબોર્ડ, કબાટની અંદર કપ રાખો તો એનું ટેમ્પરેચર થોડી આમને બદલવાનું છે, સેમ જ રહેશે। That's the end of this lecture. You have to draw these small graphs in your rough book and then answer. એકદમ હાથેથી ચાલશે, અને આ બધા ગ્રાફ ડ્રો નથી કરવાના, પણ ક્વેશ્ચન આન્સર પ્રોપરલી લખવાના। થેન્ક યુ સો મચ, સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ।